good evening, parents, teachers, students, and all the people who are watching us. Career counseling. This is what is going to happen right now with a live, no preparation. I should say some honest work being brought on screen by smart natives and Novo leaders. So we have all best of students from best of cities of India who have joined here. And really, the students also don't know what is going to happen right now in the session. So that reality show is, going to be presented to parents, students, and everybody, being forwarded in one conversation. That if I share data, only 40% of the scholarships are availed by the students nationally and internationally. So these scholarships go a waste because students don't know about it. And I would be also posting links here for the scholarship group, so that students, you take scholarships. How good it would be that you particularly start, searching avenues wherein mentors are like being with you and financially supporting you. Wouldn't that be great? And here, now I have somebody I personally admire. I have met him very recently. And when I saw that he was creating magic in my 17-year-old son, yes, Sumit ji, you don't know, but Ayan said to me, मुझे सुमित सर से बात करनी है. And he said to his dad कि मैं सुमित सर से बात कर रहा हूँ. Like that. And my daughter is undergoing your money program. So thank you so much for being here, giving this time and having this discussion. So when I ask all students, what is career for you? Please tell about yourself, from which city you are, and anything. मैंने आपको ये बताया कि हर चीज जो आप कर रहे हो यहाँ वो सही है. लाइफ में कुछ सही गलत होता ही नहीं है. It is all our creation. So before I go to Sumit sir, I will start with Kushagra, then I will come to Vardhan, then I will come to Siddharth, and then Yogit, Anjali, and Madhav. So I will start with Kushagra. So Kushagra, you were very excited for this session. So tell me, what made you so excited? जब मैंने पूछा कि आपने सुमित सर का सेशन किया है. Like right now I'm in 12th and I'm really very excited to think that what I'm going to do in future. Like what is my career plans, and basically sir will tell me like what I can do and what I have to do. So I'm excited about this. You are from which city? Kushagra, I'm asking you, everybody, did you share your city? Sorry, I might have missed it. Which city have you joined? Kushagra, we can't hear you. Ma'am, actually your voice is lagging. Okay, now can you hear me? Yeah. Can you hear me now? Yes, Okay. we can. Yes, ma'am. Okay, so which city? I need every student to tell which city they have joined with from. Yeah, basically I'm from Jaipur city. Okay, thank you. So सुमित सर, आप बताने वाले हैं क्या कुशाग्र को आज की क्या करना है कुशाग्र को, या इसको सब पता है? Let's answer Kushagra's question. Kushagra ने एक बहुत सही लाइक किया कि what can I do and what I have to do. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं लाइफ के, isn't it? मैं क्या कर सकता हूं? What can I do? मैं क्या कर सकता हूं? What does this mean? कि मेरे में क्या कौशल्य है, मेरे में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे में कौन सी ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूं.
नाउ दिस इज एन इंट्रोस्पेक्शन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मुझे जवाब नहीं देना है, ये क्वेश्चन हम सब ने अपने आप को पूछना है. आरोही ने अपने आप को पूछना है, वर्धा ने, सिद्धार्थ ने, माधव ने, हम सब ने अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई एम गुड एट, मैं कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, मुझे क्या करना अच्छे से आता है, व्हाट इज माई नेचुरल टैलेंट, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स. ये पहला सवाल हो गया, ये अपने आप को पूछना है कुशाग्र. आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, योर पेरेंट्स विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. पेरेंट्स थोड़ा बहुत जानते होंगे कि कुशाग्र इस चीज में अच्छा है, पर ये उनका नजरिया है. आपके नजरिए में आप किस चीज में अच्छे हो, ये पहला सवाल है. दूसरा आपका क्वेश्चन उससे भी बढ़िया था, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करियर बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. Now this is a so wonderful question which reminds me कि आज सुबह मैं एक मित्र के यहाँ जा रहा था, उसका 9:30 का अपॉइंटमेंट था. आई रीच्ड अ बिट अर्ली, 9 बजे मैं उसके पास पहुंच गया. उसका जो घर है, फ्लैट है, वो ओपन भी नहीं हुआ था. तो नीचे एक चाय वाला था, चाय वाले से मैं चाय पीने लगा और मैंने चाय वाले को सिंपल सा सवाल पूछा, यार ये रोड किधर जाता है. तो उसने मुझे उल्टा सवाल पूछ लिया, आपको किधर जाना है. मैं कहा ये सही बात है, पूना के अंदर ना ऐसे सवाल पे सवाल पूछने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं. सो मैंने भी मस्ती के मूड में था, मैंने कहा यार जाऊंगा कहीं तो उस चाय वाले ने कहा फिर यार कोई भी रोड ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे. बिल्कुल सही बात कही चाय वाले ने, ज्ञान दे दिया मुझे कि अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे किधर जाना है तो मैं कोई भी रोड ले लूं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा. बिल्कुल उसी तरह आपका जो सवाल है व्हाट आई हैव टू डू विल कैन बी आंसर्ड ओनली व्हेन यू से व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. आप जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं, अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें यह डिसाइड करना है कि मैंने आगे क्या करना चाहिए. तो कुशाग्र आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आप किस फील्ड में आपका बेसिक इंटरेस्ट आता है कि यार मैं अपने आप को कुछ ऐसा बनता हुआ देखना चाहता हूं. अगर आप इसका जवाब देते हो कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है तो भी चलेगा, परफेक्टली ओके. आप अपना लाइफस्टाइल का कॉस्ट अपने खुद से निकालना चाहोगे, आप किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं रहना चाहोगे, आप चाहोगे कि अपना घर का खर्चा मैं खुद चलाऊं, तो वो कितना खर्चा है और वो खर्चा किस किस करियर से निकल सकता है, ये विचार करने का अगला बात हो जाता है. आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, कितना खर्चा है, और तीसरी चीज आप लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, आपको क्या काम करने में मजा आ जाता है या क्या काम करने में आपको लगता है कि मैं दिन भर ये काम कर सकता हूं, ऐसे कौन से काम है. इस 3-4 सवालों से आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ जाना है और जहां आपको जाना है फिर उसके लिए मुझे क्या करना है. काफी सारे लोग ना मैंने देखा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर पूछते हैं सर अब मैं क्या करूं. मैंने कहा इंजीनियरिंग क्यों किया था. सर सब कर रहे थे, दोस्त कर रहा था, घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग कर ले, मार्क्स अच्छे आए हैं, कर लिए, अब सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं. अरे भाई क्या करना है, उसके लिए इंजीनियरिंग जरूरी है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है. मुझे जितने बच्चे आईआईटी की तैयारी में मिलते हैं मैं उनको सीधा पूछता हूँ क्यों कर रहे हो आईआईटी की तैयारी. बोले इंजीनियरिंग करनी. क्यों करनी है इंजीनियरिंग. मार्क्स अच्छे आए हैं. मैं बोलता हूँ गलत जगह जा रहे हो, वापिस आओ. इंजीनियरिंग क्यों करनी है, मार्क्स अच्छे आए तो आप कुछ भी कर सकते हो, आर्ट साइंस कॉमर्स सीए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, फार्मास्यूटिकल. इंजीनियरिंग क्यों करनी है ये बताओ. तो फिर सोचने लगते हैं. मैंने कहा सोचो, एक दिन सोच के मेरे पास वापस आओ, फिर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कौन सी अच्छी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, वो सब बात की बातें हैं. पहले क्यों करनी है. यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई. अगर आप में से किसी के दिल में मुझे सीए बनना है, क्यों बनना है, फिर जो भी आपका आंसर होगा उस पर एक और क्यों लगाओ. ये क्यों, मुझे काफी लोग बोलते हैं मुझे सीए करना है, क्यों करना है, मम्मी पापा कहते हैं इसलिए. क्यों, मम्मी पापा क्यों चाहते हैं उस पर क्यों डालिए. काफी लोग बोलते हैं मुझे सीए बनना है, क्यों, आईएएस करना है, क्यों, उसमें बहुत पावर है, क्यों तुझे पावर चाहिए, क्यों पावर में अट्रैक्शन है, उस पर भी क्यों डालिए, और 4-5 बार उस पर क्यों डालिए, एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर. ठीक है कुशाग्र, चलिए नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं. Yeah, Sumit ji, very powerful. When the why is strong, then the how is easy. तो इस why को बहुत strong रखना है, because then how becomes very easy. Very and true. This is a subject. So Vardhan, you have attended Sumit ji's session last time, and you were so excited to be back with. Otherwise, I have not allowed the students who were there, but I loved your energy and your excitement and enthusiasm for this session, and I see this is there for life, right? It is there for life also. I read your status. Do you know this? So what made you come here again?
Yeah, Please tell yes, which thank city, you, you thank are you, ma'am, from. for inviting me here. I'm Vardhan Jain and I'm from Jaipur. So in the last session when I was there, Sumit sir like opened a whole new world for me. I wasn't sure about how I had to choose my career. Or I wasn't sure about the system at all. And जैसे मेरे दिमाग में I had only two fields, engineering या फिर commerce, sciences या फिर commerce, है ना? लेकिन फिर इन्होंने मुझे समझाया, they he showed us a whole chart, the whole system कि ये करो. तो उसके बाद I researched, तो I had some questions. जैसे या अभी भी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो क्यों वाली चीज है वो मैं खुद से पूछ लूंगा, लेकिन हम बाकी लोगों को जैसे ऑब्वियसली हम दुनिया से अलग होकर बिना कुछ बताए लोगों को, बिना कुछ लोगों से पूछे, बिना लोगों को समझे हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. जैसे सबसे बड़ा पार्ट हम लोग पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे कि हमें ये करियर लेना है, और अपने रिलेटिव्स को स्पेशली हमें ये करियर लेना है और आप इसमें हमें सपोर्ट करो, ये समझाना एक प्रॉब्लम हो जाती कभी कभार. तो मुझे ये जानना है कि ये कैसे करें in a way that we keep the respect and we don't have to argue with them, और कि हमारी बात भी निकल जाए उससे. बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल वर्धन. आई थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. और इतने खुले मन से लाइव प्लेटफॉर्म पे आप पूछ रहे हो, और आपके शायद मम्मी पापा भी ये देखेंगे और फिर आपको कहेंगे जा तू सुमित से क्या सीख के आया, ये हमारे पे मत ट्राई कर, ऐसा भी बोलने वाले हैं. सो चलिए फिर भी आपको लाइव बता देते हैं. फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर एनीथिंग इन लाइफ, करियर तो छोड़ दीजिए, किसी भी चीज के बारे में मम्मी पापा को अगर कन्विंस करना हो, तो सबसे पहला सवाल मम्मी पापा से जब आप बात करने जाएं तो अपने पास प्रिपरेशन करके जाना होता है. क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना होता है कि जो आप चीज कहने वाले हैं उसकी क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट, उसके पीछे की आपकी जरूरत क्या है, वो चीज जो आप करना चाहते हैं वो करने से आपको फायदा क्या होगा, what will be the benefit which you will get, वो चीज करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट, आपका कॉस्ट कितना होगा, इज द कॉस्ट रीजनेबल फॉर इट. ये हो गया थर्ड. और चौथा, अगर ये चीज नहीं की तो नुकसान क्या होगा. ये हो गया चौथा या पांचवा, जो भी, ये 5 चीजें हैं. फिर से एक बार रिपीट करते हैं. नीड, कि ये करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, ये करियर में करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं, वाई उसके पीछे का, मेरे उसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज माय नीड बिहाइंड इट. सेकेंड, व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ इट, इसमें से फायदा क्या होगा, आप क्या फायदा देख रहे हैं. थर्ड, ये चीज करने के पीछे का इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई भी चीज खरीदनी हो, आईफोन भी चाहिए हो तो कितना पैसा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है उनसे बात करना. कई बार उनको नहीं पता होता है. आप ये करियर करना चाहते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट है ये. उसके बाद में अगर ये मैं नहीं करूं तो थ्रेट क्या है, नुकसान क्या है, ये अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, ये वगैरह वगैरह वगैरह, क्या नुकसान रहेगा ये. अगला, ये हो गया फर्स्ट, ये फाउंडेशन है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए. इसके आगे की तैयारी आपके, ये सब बोलने के पहले ये तैयारी है आपकी जो करना है. ये जो चीज आप करना चाहते हो उसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे और क्या क्या प्लान लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी और क्या क्या एफर्ट्स लगेंगे, ये आपको पता है क्या, आपने वो तैयारी कर ली है क्या. क्योंकि आप कहीं पे नाइट आउट स्टे करना जाना चाहते हैं तो आपके क्या क्या रिस्क है, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स लगेंगे और उस एफर्ट्स की आपने कितनी तैयारी कर ली है, ये लगेगा आपको. और फाइनल चीज ये लगेगा कि आप जो ये करना चाहते हो उसके लिए आपके साथ कोई ट्रस्टवर्दी व्यक्ति है क्या. क्योंकि मुझे तो नहीं पता, तू बेटा ये करना चाहता है, किस पे भरोसा करके करना चाहता है, उस व्यक्ति से मुझे मिलवा दे, तेरे पे मैं प्यार करता हूं, भरोसा नहीं है. ये मम्मी पापा का फेवरेट डायलॉग होता है जो बोलते नहीं है लेकिन दिल ही दिल में होता है. तू छोटा है, तू, तेरे पे मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं, पर मैं किस पे भरोसा कर सकता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके आप बोल सकते हो. आप नॉर्मली बोलते हो ना, मुझे जाना है, अंजलि बोलती है आरोही जा रही है मुझे भी भेज दो, तो हाँ अच्छा आरोही जा रही है, ठीक है बेटी तू जा, मतलब अंजलि पे भरोसा नहीं, आरोही पे ज्यादा भरोसा है. ये माँ बाप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कई बार. तो बिल्कुल उसी तरह अगर मैं कोई करियर कर रहा हूं तो मेरे पास ये 2 ट्रस्टवर्दी लोगों से बात किया है जो सीनियर है और उन्होंने कहा है ये अच्छा है और मैंने ये डेटा निकाला है और ये मैंने तैयारी की है. अब ये 7 स्टेप है. अगर ये 7 स्टेप की आपने तैयारी कर ली, उसके बाद में आप उनको बोले एक प्रेजेंटेशन देना है और आप मेरे सवाल के जवाब दो या आप मेरे से सवाल पूछो और आप ये प्रेजेंटेशन दीजिए.
उसके बाद में उनकी जो भी राय होगी वो सुनिए, उनके सवाल सुनिए, लिख लीजिए। उस समय जवाब मत दीजिए, गुस्सा भी आ रहा हो तो भी लिख लीजिए, और उसके बाद में उनको पूछिए, उन सवालों पे सवाल पूछिए। जैसे चाय वाले ने मुझसे सवाल पूछा वैसे उनसे पूछिए। जैसे होता है कई बार सवाल, बेटा तू हमारी इज्जत खराब करेगा, तू जाके मॉडल बनेगा। ये बहुत फेवरेट डायलॉग होता है। मेरे पास इतने लड़कियों ने मुझे काउंसलिंग में पूछा है, सर मुझे मॉडल बनना है लेकिन घर वालों को कैसे समझाऊं। उनको लगता है कि सबसे गंदा प्रोफेशन है। सिंपल। तो बच्चे क्या बोले, तो मैं बोलता हूँ मैं नहीं कन्विंस करूंगा, आप ही करोगे। क्या पूछोगे, मॉडलिंग के करियर में आपको क्या बुरा लगता है ये बताइए। तो वो कहेंगे 4 चीजें। अगर मैं ये वादा करूं मैं ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो इज दैट ओके विथ यू? या आपको क्या डर और क्या रिस्क लगता है बताइए, उस रिस्क की मैं ये तैयारी कर लूं तो इज इट ओके? एंड देन पेरेंट्स गेट कन्विंस्ड। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड डू। और एक चीज, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल भी आवाज नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं तोड़नी है, मुस्कुराते हुए सारे सवाल सुनने हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ नेगोशिएशन एवरीवेयर इन लाइफ। पेरेंट्स तो यार फिर भी हमारे पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो सलाम है, उन पे तो गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता है। Yeah, very true. One thing we can vouch is everybody who is here is having best of parents. ये बिल्कुल गारंटी है। ये आप लोग भी अग्री करोगे, और जितने लोग ये देख रहे हैं दे विल ऑल्सो अग्री टू दिस। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि पेरेंट्स इतने कमिटेड हैं। एंड वन थिंग विच आई वांट टू टेक फ्रॉम सुमित जी's कॉन्वर्सेशन इज, हमने ये सीखा कि हमें किसी को गलत नहीं ठहराना है, ना पेरेंट्स को ठहराना है, ना टीचर्स को ठहराना है, ना खुद को ठहराना है। क्योंकि वी हैव, इवन आई एम सीइंग यूथ एंड टीन्स बीइंग वेरी क्रिटिकल अबाउट देमसेल्व्स। दे आर टू हार्ड विद देमसेल्व्स। अपने बारे में बहुत कॉन्वर्सेशंस है, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। तो दिस इज अ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, दिस सेशन फॉर एवरीवन। वी हैव एन ऑडियंस आल्सो saying very important information. Superb. So thank you. So, and Arohi is saying, ma'am, you are not audible. So these are all communications coming to me. So somewhere we have to be accepting our ordinariness. Believe me, the 8 people here and the people living on this planet are ordinary. It is just some practices. Anger आएगा, लेकिन वो practice बता रहे हैं सुमित सर, हम लोग. So quickly coming to who wants to go next? Who wants to go next? देखो लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। May I? Yes. Oh, Who's sorry this? मैम, मेरा Please take your front name. कैमरा काम नहीं कर रहा। मैम कोई योगित। दिक्कत नहीं है, आपने मुझे मैसेज कर दिया। योगित, yes, योगित। Yes. You are in 10th standard. आप कहाँ से ज्वाइन किया आपने? Yes, ma'am. Ma'am, I am from Panipat city, battleground of Mahabharat. Hello everyone, my name is Yogit and I am studying in 10th standard and I am from Panipat city. मेरा सुमित सर से मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम अक्सर हमारा डर लगता रहता है और फेलियर्स का बहुत डर होता है, तो जो ये फेलियर्स का जो फियर है इसे कैसे मिटाएं मैम? सुमित जी एक सेकंड। सिद्धार्थ, आपको डर लगता है? सिद्धार्थ, आपको डर लगता है? यस मैम। ठीक है। वर्धन, यस मैम। वर्धन आपको डर लगता है? लगता है ना? कुशाल, Yes. आपको लगता है? सुमित जी, आपको लगता है डर जब आप नया कोर्स लॉन्च करते हैं? डर नहीं लगना यह अस्वाभाविक है, लगता ही है। सो वेरी Yes, sir, इंपॉर्टेंट over to you. क्वेश्चन आपने, नाहिद जी बहुत सही सवाल पूछा। और योगित, अगर मुझे डर नहीं लगता है, उस सिचुएशन में नहीं लगता है जहां पे आई डोंट केयर। इफ आई केयर आई फियर। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को किसी के बारे में कोई केयर नहीं है तो आई डोंट फियर, मुझे उसका कोई डर नहीं लगता है। कोई अगर रोड क्रॉस कर रहा है और मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आई डोंट केयर, मर रहा है तो मर भाई, गिर रहा है तो गिर भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है। The only thing is if I get the sense of fear, what do I do next? मुझे डर लगने के बाद में मैं आगे क्या करता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको योग्य डर लग रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप चुपचाप बैठ जाओगे, मेरे को कुछ नहीं करता हूं, नो एक्शन। इज दैट व्हाट यू डू? अगर मुझे डर लगता है तो मैं रोने लग जाता हूं, इज दैट व्हाट आई डू? और अगर मुझे डर लगता है तो मैं ज्यादा अटेंटिव हो जाता हूं, मुझे डर लगता है तो मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालता हूं, अगर मुझे डर लगता है तो मैं ज्यादा विचार करने लगता हूं, अगर मुझे डर लगता है तो मैं लोगों से हेल्प लेता हूं।
वंडरफुल। सो अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो, वो सवाल है। और अगर आपका डर के कारण कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो डर के कारण कॉन्फिडेंस अगर लो हुआ है तो तैयारी करके कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, सो आई हैव टू प्रिपेयर। सो डर से कारण कॉन्फिडेंस कम हुआ है या कम प्रिपरेशन के कारण हुआ है? अगर मैं प्रिपेयर्ड कम हूं तो मैंने प्रिपरेशन थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। आज आप एक लाइव सेशन में आए हैं, आप जाके 10 और वीडियोस देखिए, 2-4 और लाइव सेशंस में जाइए, नाहिद मैम से 1-to-1 डिस्कशन कीजिए, अपने दोस्तों से सवाल पूछिए, जवाब सुनिए, थोड़ा प्रिपरेशन ज्यादा कीजिए, डर कम हो जाता है। अपने से आगे जो गुजर चुके हैं उनसे सवाल पूछिए, राइट? व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज आप मेरे से 2-4 साल पहले लाइफ में आगे पैदा हो गए थे, पहले आपने कुछ कर लिया, तो आपसे मैं पूछ लेता हूं कि भाई आगे जिंदगी कैसी है, 30 साल की उम्र में आपको क्या लग रहा था, 40 साल की उम्र में क्या लग रहा था, वो सुन लीजिए, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया इनकी उम्र में ऐसा हुआ, हमारी उम्र में शायद थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि मैंने देख लिया आगे रास्ते में कितना ट्रैफिक है, जैम है, झगड़ा है, स्लिपरी है, वो समझ लिया और मैं उसकी तैयारी कर लूं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। So Thank you. again, Thank you, I sir. will. Thank you so much. Yogit, is your question answered? Yes, ma'am. Of course, ma'am. Thank you, sir. Okay, thank you ma'am. so much. So मैं एक प्रैक्टिस बताती हूँ बच्चों को, एंड यू नो द यंग एडल्ट्स, आई शुड नॉट कॉल बच्चा, दे आर यंग एडल्ट्स, कि ये डर, जैसे मेरा ये क्लिप देख रहे हो आप, ये मेरे साथ ही है, राइट? ये रहेगा मेरे साथ, लेकिन मेरा दूसरा क्लिप जो मैंने सुंदर वाला लगाया हुआ है, अगर मेरा एनर्जी और फोकस वहां है, मेरे स्ट्रेंथ पे है। आपके पेरेंट्स का जमाना था कि मिस्टेक और अपने जो वीकनेसेस थे उस पर काम किया जाता था। हम लोगों को, सुमित जी को और आपके पेरेंट्स को हार्ड वर्क करना होता था कि अपनी उस वीकनेस को हमें वो करना है। लेकिन आज का जमाना इज अबाउट फोकसिंग ऑन दी स्ट्रेंथ, बिकॉज एनर्जी फॉलोज थॉट्स, एंड दिस इज अगेन प्रैक्टिस। नोइंग मेक्स नो डिफरेंस। जानकारी बहुत है गूगल में, लेकिन ये हकीकत में एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, एक जब आपके अंदर एक परिवर्तन खुद आपको महसूस होगा, उससे आएगा। So who's going to be the next opportunity to you, all of you? So see, life gives opportunity like this. I'm giving you a demonstration कि हमको यूं पकड़नी होती है अपॉर्चुनिटी, यूं पकड़नी होती है अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज अ प्रैक्टिस विच यू आर डूइंग। तो अभी तक जिसने नहीं किया है, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू कि जैसे मैं बोलूं कि who's next और दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, जल्दी से 2-3 की आवाज आनी चाहिए, क्लैश होना चाहिए। So who wants to go next? Okay. I Great. Yes, Madhav, कहाँ से join किया आपने माधव? I am from Hisar, Haryana. Now I am in 10th standard and boards are going to held very. So I want to ask Suman sir that I am not able to think that in which field I want to go in 11th class and 12th and further in future what I will do. So how I can know that what I should take subject in 11th class, 12th and first year and my future, what will be my future? वंडरफुल क्वेश्चन माधव। माधव, रेस्टोरेंट में जाते हो तो फूड ऑर्डर करने कैसे ऑर्डर करते हो? कैसे पता चलता है कि कौन सा फूड ऑर्डर करना चाहिए इस रेस्टोरेंट में? From menu. सिंपल। सो करियर का मेनू ढूंढते हैं। करियर का मेनू कार्ड कहाँ पे है? नाहिदा मैम के पास एक है जिसके अंदर उनके पास 400 करियर के ऑप्शंस है। वहां से शुरुआत करो और फिर उसको और रिसर्च करो कि इसमें से क्या चीज आज मेरा मूड है। चाइनीज खाने का मूड है, कुछ और क्या क्या होता है आजकल, मैं भूल गया यार, बाहर खाना बंद कर दिया। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो कैटेगरीज हमको देखनी है। तो मेडिकल में क्या ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में क्या ऑप्शंस हैं, साइंस में क्या ऑप्शंस हैं, ह्यूमैनिटी में क्या ऑप्शंस हैं, ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शंस हम देखें एंड देन उसमें से कुछ सिलेक्ट करो और फिर कंपैरिजन शुरू करो। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप है कि आप अलग अलग ऑप्शंस देखोगे, उसमें से आप कुछ शॉर्टलिस्ट करोगे
और फिर शॉर्टलिस्ट कंपैरिजन अपने खुद से है। ये फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 3 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। व्हाट आई लव टू डू, मुझे क्या करना पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, और कौन सा ऐसा करियर ऑप्शन है जो मुझे जितना खर्चा पानी चाहिए वो देगा। ये वाला खर्चा पानी नहीं, लाइफस्टाइल वाला खर्चा पानी। सो कौन सी ऐसा चीज है जिससे मुझे पैसे मिलेंगे उतने जितने मुझे मेरे लाइफ में चाहिए, क्या चीज करना मुझे पसंद है, काम करना अच्छा लगता है, और कौन सा मुझे कौशल्य अच्छे हैं। ये 3 सवाल इंटरनल, और ये 3 सवाल करियर के रिलेटेड। क्या करियर के रिलेटेड 3 सवाल, कि इसका जॉब रोल क्या है, इसमें क्या करना होता है, दूसरी चीज इसमें कितनी सैलरी मिलती है, और तीसरी चीज ये करने के लिए क्या क्या कौशल्य और किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ये 3x3 मैच कर लिया, शादी बढ़िया। But you have to start with identifying the menu card first. Okay, sir. Thanks. So I will be sharing the sheet very shortly with everyone, and all of you are requested to join our scholarship group, or you can make your parents join. So quickly I will come to Siddharth. So Siddharth, what anything you want to specifically ask? आप कहाँ से ज्वाइन किया है ये भी बताइएगा। Yes, ma'am. I'm joining from Suratgarh, Rajasthan, and I have done my class 12 from humanities. And I want to ask about the law field after class 12th. What can I do in the field of law after class 12th? लॉ के अंदर आप करियर बनाना चाहते हैं सिद्धार्थ, बिल्कुल लॉ के अंदर Yes, sir. बहुत सारे करियर ऑप्शंस, वो जो 400 करियर की शीट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, वो तो मैम दे देंगी। मेरे 1-2 पॉइंट्स थोड़े से अलग मैं बता दूं लॉ फील्ड के बारे में, जो थोड़ा सा मैं जानता हूं। आजकल लॉ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत काम कर रही है। क्या कर रही है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब आप ये 2 वर्ड आपने सुने होंगे, एआई, कम से कम पिक्चरों में तो भी देखे होंगे, जितने आप वेब सीरीज देखते हैं, जितने मूवीज देखते हैं, उसके अंदर बहुत एआई और मशीन लर्निंग बहुत कुछ करता है, राइट। जासूसी के काम और पता नहीं क्या क्या ढूंढने काम। लॉ के अंदर भी ये काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि आप कोई केस उसके अंदर डालें तो कंप्यूटर अपने आप सर्च करके बता देगा कि इस प्रकार का केस कौन से कोर्ट में कब हुआ था और उसमें क्या डिसीजन आया था और उसमें क्या पॉइंट्स रखे गए थे। ये सारा काम कंप्यूटर कर देगा। ये सारा जो पीछे किताबें दिख रही हैं, जो लॉयर्स बड़ी बड़ी किताबें पीछे रखते थे, उसका जमाना जा चुका है, क्योंकि ये सारी किताबें अब कंप्यूटर में है। और इस तरह की अलमारी दिखाना अब सिर्फ शो का काम है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पे अवेलेबल है। आप कंप्यूटर पे सर्च करोगे और जैसे ही आप वहां पे सर्च करोगे कंप्यूटर सब कुछ बता देगा। लॉयर को सिर्फ वो पढ़ना है और सामने प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट करने का भी कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ई लर्निंग वगैरह हो गया है और सब कुछ विजुअल हो रहा है। तो लॉयर की जो लाइफ किसी जमाने में हुआ करती थी और जो सनी देओल जी ने मशहूर की थी कि तारीख पे तारीख एंड तारीख पे तारीख, ये सब पिक्चरों में ज्यादा बेहतर होता है। रियल लाइफ में लॉयर का रोल बहुत अलग होता है। लॉयर का रोल कॉर्पोरेट में काफी बेहतर है देन अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, ये भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर लॉयर का बहुत बड़ा लीगल काम होता है और उसे बहुत सारे एनडीए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सो आपको लॉयर बन के करना क्या है और आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उस प्रकार की लाइफस्टाइल अब लॉयर की रही है क्या, ये पहला सवाल आपको पूछना जरूरी है। और अगर ये सवाल का जवाब आपको मैच हो गया, देन यू हैव टू लुक एट हाउ टेक्नोलॉजी इज इफेक्टिंग द लॉ फील्ड। टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से लॉ फील्ड को इफेक्ट कर रही है, आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड साथ में करना पड़ेगा, राइट। और उस हिसाब से फिर आप अपने लॉ फील्ड में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। I personally, Thank you very much, sir. Very much, thank you. Yeah, Siddharth, personally, this lawyer is actually all about communication skills. So I am quite influenced that जितनी sharp मुझे लगता है ये skill सबके लिए बहुत important है और ongoingly हम develop करते हैं. So communication skill is something which the lawyers really come very naturally and charismatically. They develop that ongoingly. So a good decision, I see a good, not decision, I should say, you are working in this particular area. And what is opening up now is, अभी आपने जो बोला जैक मा जो है अली बाबा वाले,
उन्होंने ये कहा है, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मिलियंस ऑफ जॉब आर गोइंग टू वैनिश इन नेक्स्ट कमिंग 10 years, माय डियर यूथ. और यूथ, सुनो मेरी बात, इसलिए सुनो कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री. 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज all youth, young adults. So if you all transform, the country transforms. So artificial intelligence, सुमित सर ने बताया, machine language, फ्रीलांसर्स, 9 से 5 की नौकरी वाले आप लोगों की बहुत कम मानसिकता. अभी मैं अगर सर्वे करूंगी तो मुझे आधे से ज्यादा लोग अलग मिलेंगे. सो यू गाइज आर रियली गोइंग इन एन ऑनलाइन एंड डिजिटल एज. 500% टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने वाला है. और अभी भी आप ये बता दो, रोज समथिंग एडवांसमेंट इज कमिंग एंड वी आर नॉट एबल टू कैच अप दैट वेल. और आधी स्ट्रेस या हमारी ये जो डी क्लटरिंग हो रही है हमारे दिमाग की, इफ यू सी दीज वायर्स, these are all our decluttered thoughts and all. So this is happening, at a very fast space, I should say, and pace. So my dear friends, what sir is saying is making a lot of sense and logic. कि अब आप एक नए चश्मे से देखिए इस दुनिया को, जो टेक्नोलॉजी का चश्मा है, इससे देखिए, क्योंकि बहुत 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 कुछ हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग दिस एंड क्विकली आई विल कम टू आरोही. Sumit ji, you have to ask Arohi question because she cannot hear me. Arohi और अंजलि से आप ही पूछेंगे सवाल. Arohi, Anjali, are you ready? So if you are ready, the question is, what do you want to do in career and why? आप क्या करना चाहते हो लाइफ में और क्यों? Anjali, can you hear? Anjali, can you hear us? You have to unmute and speak. Unmute. Go ahead. Yes, Yeah. ma'am. So I would be pursuing BJMC, that Bachelor's in Journalism and Mass Communication. और क्यों करना चाहते हो? Why do you want to do it? 10th, after 12th, I had two plans, like either in designing or journalism. But as I read, and I found my interest in journalism, that's why. Are you on Facebook or LinkedIn? Facebook या LinkedIn पे आप हो? Yes, no. नहीं, मैं आईडी नहीं मांगूंगा, डोंट वरी. आई एम जस्ट आस्किंग, आर यू ऑन फेसबुक और लिंक्डइन? No, sir, only Instagram. क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और कम से कम एक 50 रिपोर्टर्स और जर्नलिज्म के लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए. अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हैं तो कितने जर्नलिस्ट को या कितने आपके फील्ड के लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए. कितने न्यूज़ चैनल्स को आप फॉलो कर रहे हैं और कितने न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाले या प्रिंट मीडिया में काम करने वाले लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं. एटलीस्ट 100 people on Instagram, you should follow them. That's your first step to do. And this is for everyone. सब लोगों के लिए ये बात बिल्कुल है कि आप जिस किसी करियर में आगे जा रहे हैं, लॉ में जाना चाहते हैं, सीए में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के आगे आपसे 2-5 साल 10 साल आगे वाले लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए. दैट्स द फर्स्ट स्टेप विच यू शुड डू. राइट अंजलि? आरोही, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Arohi, you can unmute yourself and say if you want to. Am I audible, sir? Audible. Hello? Audible. Go ahead. Sir, can you please repeat the question? What do you want to be in life and why? क्या करना चाहते हो करियर में और क्यों? So actually, I want to become a civil servant and serve people. Why do you want to become a civil servant? Because Because I want to serve people and because of power and respect and why do people you want get to in this serve? job. Why do you want to serve people?
because I really like doing that. Wonderful. So you like serving people, right? And why do you want power and status? So because everyone wants respect. So yeah. Everyone wants lot of other things also, आरुषि. अपन पर्सनल बात करेंगे. Why do you want power and respect? फिर से एक बार थोड़ा सोचो. Everyone wants to do whatever. छोड़ दो. अपन अपने को क्यों चाहिए? Why do I want power and respect? So for less rules and regulations, I guess. Wonderful, wonderful, wonderful. So you would have convenience. Rules regulation से थोड़ा सा restriction बढ़ता है, थोड़ा convenient होना चाहिए, right? अब इसको और आगे भी जा सकते हैं. You can ask, why do I want convenience? मुझे ये क्यों चाहिए? Why are these questions important? क्योंकि इससे पता चलता है कि ये मेरी actual need क्या है. So आपकी actual need है that you want to contribute to people. आपको कुछ करना है, लोगों को सेवा करनी है. सिर्फ IAS ही सेवा करती है ऐसा नहीं है. There could be 20 other careers also, right? Power आपको जो मिलता है उससे आपको रूल्स कम चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, ज्यादा दिमाग को. somebody shouldn't bulldoze on me. I should be able to make my own decisions. ये मुझे ज्यादा चाहिए है, राइट? तो उसके लिए IAS ही करना जरूरी है क्या? ये सवाल आप फिर बाद में जवाब दे पाएंगे. क्यों ये सवाल का जवाब चाहिए? फॉर ऑल ऑफ यू हु आर हियरिंग दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इज, मुझे अगर मेरी नीड पता है तो आई नो विच ऑल वेज आई कैन अचीव दैट नीड. अगर मैं मेरी नीड ही IAS रखूं तो अब आरूही क्या करेगी? शी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन करके एग्जाम देगी. गुड लक इफ शी पासेस इन द फर्स्ट टाइम. इफ शी डजंट, शी विल ट्राई वन मोर ईयर. और फर्स्ट टाइम में नहीं क्रॉस किया तो थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, बोलेगी चलो अब सेकेंड टाइम में ना पास हो जाऊंगी, फर्स्ट टाइम तो ट्रायल था. तो सेकेंड ईयर और मेहनत करेगी. गुड लक, सेकेंड ईयर पास हो जाए, गॉड ब्लेस, शी विल बी हैप्पी. नहीं होगी तो बोलेगी यार कुछ कमी रह गई थी, दिस टाइम थर्ड टाइम पक्का है. एंड थर्ड टाइम भगवान न करे अगर नहीं हो पाई तो सब बोलने लगेंगे आरूही कुछ और सोचें, कुछ और स्टैंड बाय करना है, उम्र गुजर रही है, वी ऑल्सो हैव अ लाइफ, मैरिज, बहुत कुछ और भी देख ले, स्टैंड बाय देख ले. धीरे धीरे बोलेंगे, दिल भी नहीं दुखाना चाहेंगे, एंड दैट विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? सो आई एम नॉट demotivating you, Arohi, but very important for all of us who want to get into any entrance exam, CA, IAS, engineering through IIT and whatever, or even medical field. Two important things. First, every entrance exam requires 10 to 12 hours of study. 10 to 12 hours of focus study. सारे जो टॉपर्स जो इंटरव्यू देते हैं ना, हम तो 4 ही घंटे पढ़ते थे, मैं तो गेम भी खेलता था, वो सब बातें हैं साहब. जस्ट कीप इट असाइड. वो जब हो जाता है ना पास तो बड़ी बात बोलनी होती है, इसलिए बोला जाता है. सो वो फैक्ट नहीं है, और अगर वो फैक्ट है तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई. हम उतने इंटेलिजेंट हैं क्या? Two important things required. One is, am I so intelligent कि मुझे एक बार में याद हो जाता है? Sin 30 क्या है मुझे पता है क्या? Sin 45 मुझे पता है क्या है क्या? ज्योमेट्री में सब सीखा था. Tan 75 क्या होता है मुझे पता है क्या? अगर मुझे वो एकदम से याद नहीं आता है तो मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ. सिंपल सी बात. फिर इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो दूसरी चीज क्या चाहिए? 12 से 15 घंटा चाहिए. 12 से 15 घंटा में फोकस कर पाता हूँ क्या? अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो ये दोनों चीजों की बगैर मैं टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आना किस्मत का खेल है. किस्मत के लिए मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे क्या, और पता नहीं बहुत कुछ लगता है, मुझे नहीं पता. बट वो तीनों चीजें अगर मेरे में हैं तो पक्का कंपटीशन में जाओ यार, छा जाओ. आपके जैसे लोग चाहिए. पर अगर वो तीनों चीजें नहीं हैं तो सेकेंड करियर ऑप्शंस की भी तैयारी करो. ये नहीं बोल रहा मत ट्राई करो, टेस्ट करो अपने आप को, लेकिन सेकंड करियर ऑप्शन की तैयारी साथ साथ में करो. जितने लोग CA करना चाहते हैं उनको मैं कहता हूं बस प्रैक्टिकल अकाउंटिंग साथ में सीखो. क्यों? क्योंकि CA नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग किया है तो आप कम से कम कमाना शुरू कर दोगे, एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा. CA को 6 साल भी ट्राई करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लोग 8-8 साल ट्राई करते हैं, परफेक्टली ओके है. बट सेकेंड करियर साथ में स्टार्ट कर दो, इट रियली हेल्प्स. ठीक है आरोही, इट वॉज नॉट डिमोटिवेटिंग, इट वॉज जस्ट अ concern which I shared. Yeah, and a practical example here, you know, like my parents wanted me to be a doctor, and I was sent to Aligarh Muslim University during my 11th and 12th so that I'm an internal candidate and I can fight that. I couldn't become a doctor,
and everybody should know. Then I married a doctor, because at the back of mind, as a student, now I realize as a trainer that that doctor was so important, like me shattering my parents' dreams. And then I became a nurse in Indian Army, and I did well. And then I was into another career, and there again, you know, a corporate thing. And then 2008, I am into education. So life can, like Sumit ji is saying, all backup plans are important. And see, you have to be, you know, always in the presence of your happiness and what makes you happy. Because life, everybody hear this, इसको कान से नहीं, ध्यान से सुनिए. Life is a journey from being selfish to selfless. The selfishness is important. It's nothing bad. So just discover your own self. तो मैं 2-3 टेक्निक का अभी नाम लूंगी, और सुमित जी, you can add here कि टूल्स और टेक्निक्स भी है करियर के लिए. इकिगाई, प्लीज रीड द बुक, प्लीज गो फॉर द ऑडियो. एक तो आप पहले अपने आप को समझो कि आप ऑडियो लर्नर हो कि आप विजुअल लर्नर हो. जैसे मैं ऑडियो हूं, मैं किताब नहीं पढ़ सकती हूँ, बहुत 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 प्रॉब्लम है. डिस्कवर योर सेल्फ, वेदर यू आर किनेस्थेटिक, योर टाइप ऑफ लर्निंग पैटर्न, योर पर्सनैलिटी टाइप. बहुत कुछ मिल जाएगा गूगल में, पता करो अपने बारे में. रीड दिस बुक, रीड 1 बुक एवरी वीक. एक मेंटर आती है स्मार्ट ट्रेडर्स में, डॉक्टर सुशीला. सो शी सेज दिस, और ये जापान का एग्जाम्पल है. वीक में 1 किताब पढ़ते हैं तो साल में 52 किताबें. It happens, and you see the Japanese people doing really, you know, in that consistency जो हम सीख रहे हैं. Another thing is DMIT, ये जो फिंगर इम्प्रिंट्स है. जब हम मम्मी के पेट में थे तो हमारा जब ब्रेन बन रहा था, तब ये हमारे फिंगर इम्प्रिंट्स बन रहे थे. सबके यूनिक होते हैं. This can be tested, and this is not expensive. There are psychometric analysis. There is one-on-one counseling. As I said, my son is undergoing Sumit sir's counseling. Choose anyone. Have virtual mentors. Have personal mentors. लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ, फ्री की वैल्यू नहीं होती है. Please keep money at stake. So go ahead. And anything to be added here before we close the session, or if anybody wants to ask anything, और कुछ tools and techniques आपकी sheet में जरूर share करूँगी. Yes. Yes, Yes, मैम. somebody मुझे is saying मैम something. जैसे अभी सुमित सर. Yes, मैम. मैम जैसे अभी कौन सुमित बोल सर रहा ने है? बताया कि Who's- आपके, हम योगित Who's बोल this? रहा हूँ. योगित, Who's this? Okay. योगित मैम, योगित. Yes. जैसे कि Yes, सुमित yes. सर ने बताया कि प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए. तो सर मैंने सुना है, जैसे मैंने कभी अपने बड़ों से सुना कि अगर प्लान ए के साथ प्लान बी होता है तो सर प्लान ए से फोकस कम हो जाता है सर, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि चल अगर इसमें फेल, इस करियर में फेल हो गए तो प्लान बी भी हमारे साथ है. क्या सर ऐसे ही होता है? बहुत सही सुना है आपने योगित. एक बहुत पुरानी कहानी भी है. अलेक्जेंडर सिकंदर, जब बहुत उसकी फौज छोटी हो गई थी और एक युद्ध लड़ने जाना चाहता था, तो उसने जिस ब्रिज से वो आया था वो ब्रिज जला दिया. क्यों? क्योंकि अब फौज वापस ब्रिज से क्रॉस करके वापस रिट्रीट नहीं कर सकती थी. अब उसे लड़ना ही है, मरना ही है और जीतना ही है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपका 100% उसमें आना चाहिए. और अगर आपका 100% आप नहीं देते हो इस वजह से क्योंकि आपके पास प्लान बी है, ये बात भी उतनी ही सही है. आई एग्री विथ योर सीनियर्स, अनडाउटेड अबाउट इट. नाउ लुक एट दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली कि मैं अपना 100% दूं और मैं क्रॉस नहीं कर पाऊं, ये चेक कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? कि मैं अपना 100% दूंगा तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चेक मैं करूं कि नहीं करूं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. मुझे ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतना है 100 मीटर रनिंग रेस में. ये मैंने मेरा ठान लिया है कि मुझे 100 मीटर रनिंग रेस में या ओलंपिक्स में जाना है स्पोर्ट्स के अंदर. सिंपल सा पॉइंट है. 100% मैं देने को तैयार हूं. व्हाट आर द लिमिटेशंस? द लिमिटेशन इज माय बॉडी. Is my body flexible enough? Do I have the stamina enough? Can that be developed? मेरी बॉडी का एक फाइनल लिमिटेशन रहेगा as compared to the world's best, right? So वो मेरा रिस्ट्रिक्शन है, वो मेरा थ्रेट है, वो मेरा वीकनेस है, वो मेरा एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर है जो मैं 100% देने के बावजूद भी नहीं कर पाऊंगा.
ये अगर मैं मानता हूं, जानता हूं, तो भी मैं अपना 100% देके ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो एक स्टैंड बाय करियर या एक स्टैंड बाय ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, कहीं मैं शहीद ना हो जाऊं ये करने में। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो सीए या मेडिकल या आईएएस की तैयारी करते हैं, 8-8 10-10 अटेम्प्ट करते हैं, जो भी मैक्सिमम अटेम्प्ट है, उसके बाद में इतने निराश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं। दे गेट इनटू ड्रग्स, दे गेट इनटू अब्यूज। जयपुर के पास एक जगह है कोटा, आपने तो न्यूज में आता है यार, बच्चे फेल होने के बाद क्या करते यस हैं, सर। राइट? अगर उनके पास स्टैंड बाय होता तो शायद वो नहीं करते ना, उनके पास स्टैंड बाय नहीं था, इसी वजह से उन्होंने वो ड्रास्टिक कदम उठाया। नाउ दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। आई एग्री, अगर आपके पास स्टैंड बाय है तो हम 100% नहीं देते हैं, ये बात तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, इसलिए मैं माँ बाप को बोलता हूँ कभी स्टैंड बाय की बात मत करो। लेकिन अगर आपने स्टैंड बाय की बात कर दी माँ बाप ने, तो बच्चा 100% नहीं देता है। पर अगर बच्चे को 100% देने के बाद अगर फेल हुआ, तो अगर उसका स्टैंड बाय नहीं है तो वो सीधा स्टैंड आउट हो जाता है लाइफ से, वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से स्टैंड बाय आपको रेडी करना होता है। और थैंक यू सुमित सर। सर यहाँ सर पे एक और क्वेश्चन था जी, कि सर कई बार लगता है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं इसमें भी कैरियर बना सकता हूँ, इसमें भी कैरियर बना सकता हूँ, तो सर इस कंफ्यूजन को कैसे मिटाएं? बहुत बढ़िया सवाल। वरदान आपके पास आते हैं 1-2 मिनट में। योगित, आपका जो सवाल है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और वो भी कर सकता हूँ, उसका एक बहुत सिंपल टेबल एनालिसिस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो इसमें मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने साल लगेंगे, और मैं क्या कमा पाऊंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और ये दूसरा करियर है, ये कंप्लीट करने में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितना साल लगेगा, और मैं कितना कमा पाऊंगा। ये बिल्कुल प्लेन सिंपल दिमाग वाला कैलकुलेशन है, ये कर लो। अब इसके अंदर सिर्फ 19-20 तब होता है जब मुझे पसंद ये भी है और मुझे पसंद वो भी है, अब प्रॉब्लम होती है, राइट? सो मुझे माधव भी पसंद है, मुझे कुशाग्र भी पसंद है, तो मैं किससे दोस्ती करूं? वहां पे सर आपकी दिल की बात है सर, वो मैं नहीं कुछ कर सकता। दैट यू हैव टू डिसाइड वन ऑफ द टू, यू हैव टू मेक अ चॉइस, नहीं तो दोनों निकल जाएंगे। बट बाकी लॉजिक वाला थैंक काम यू बहुत सर। आसान है। सुमित सर जी यहाँ पे सिद्धार्थ, इकिगाई वर्धा। कैन ऑल्सो हेल्प टेक्निक, सो देर आर टूल्स। सो ऑफलाइन बात कर सकते हैं योगित, देर आर सो मेनी टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि यस मैम, आपके यस मैम। इनर मैम कॉलिंग क्या है। यस मैम। मैम जी एनीथिंग आपको सर। मैं मोर यू कल वांट टू कॉल आस्क? कर फिर बात कर लूंगा जी। नो मैम, नो मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Thank you so much. So now Vardhan, you wanted to say something? Yes, ma'am. This is a personal question. This is, sir, I have interest in stock market, the share market, and I want to learn about it. So my question is, ki right now I'm in 10th standard. So would it be, according to me, I'm a little late for to start this. I should have started it around 7th or 8th, but now that I'm in 10th and I want to start this, so is this a wise decision to take up stock market studies while I'm doing 10th, or should I take it afterwards? ओके, सो स्टॉक मार्केट को पढ़ाई करने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप ऑनलाइन जितने यूडेमी में और जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इवन यूट्यूब पे वीडियोस हैं बेसिक स्टॉक मार्केट के, वो देख डालिए, देखते हुए नोट्स बना लीजिए, तो उससे थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाएगा। इट विल हेल्प, इट विल रिक्वायर ऑफ अराउंड हाफ एन आवर एफर्ट्स एवरी डे। अगर आप 10th के साथ में आधा घंटा गेम खेलने की बजाय अगर ये करेंगे तो मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। बट दैट्स अ चॉइस विच यू वांट टू मेक कि आप वो आधा घंटा काय में डाल रहे हो। गेम भी खेलो बट आधा घंटा इसमें डालो, तो यू कैन से कि भैया मैं वो नहीं कर रहा हूँ। या आप जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए, जैसे नाहिद मैम ने बोला कि मैं कान में सुन के सीख जाती हूँ, वैसे आप भी सीख सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। Second step will be that you have to actually go online to see the daily market, राइट? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट रोज सुबह खुलता है, उसके अंदर आपको एक 10 एक स्टॉक्स पकड़ के आपको आइडेंटिफाई करना है कि रोज अगर मैं खरीदता हूँ, रोज अगर मैं बेचता हूँ, तो मेरा स्टॉक कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो यू विल हैव टू देन स्पेंड अराउंड 15-20 मिनट्स इन द मॉर्निंग अराउंड 9-9:30
और फिर दोपहर में जब बंद होता है तब 2-2:30 बजे एक बार 15-20 मिनट डाल के कि मैंने जो स्टॉक सोचे थे मैंने खरीदे, वो अगर मैं बेचूं तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऐसा एक थोड़ा सा स्टडी आपको डे इन डे आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप आधा घंटा भी निकाल सकते हो हर रोज फॉर से कपल ऑफ मंथ्स 3 मंथ्स के लिए, तो आप पे फिर मम्मी पापा 50-1,000 रुपया लगा भी देंगे कि बेटा लगा ले, देख क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उतना पहले स्टडी कर लीजिए, वो स्टडी करने के बाद में देन यू कैन हैव अ मेंटर हु कैन गाइड यू एंड देन यू कैन पिक दैट अप आल्सो। आई हैव सीन पीपल ट्रेडिंग डेली, मतलब पहचान वाले हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग नहीं, पहचान वाले हमारे लेवल के लोग जो रोज का 1-2 लाख रुपए का ट्रेडिंग करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं, और रोज का 1,000-2,000 रुपया तो कमा लेते हैं विद एन एफर्ट ऑफ अराउंड 1 आवर। पर उनकी तैयारी बहुत होती है, मेहनत रोज की होती है फॉर 1 आवर, उसके अंदर 1-2 हजार रुपया रोज का कमा लेते हैं। सो दे डू इट, दे आर डूइंग इट फॉर 10 years नाउ, बट दे आर ऑब्जर्वेंट, दे आर कॉशियस, एंड दैट्स अ गुड सेकेंडरी इनकम। 25-30 हजार सेकेंडरी इनकम निकल आती है उनकी। Yeah, सर and ये यहाँ स्मार्ट पे डिसीजन लेगा था। yes, what did you say? Please repeat. सो एक बार बस समराइज करने के लिए, यस और नो में ये स्मार्ट डिसीजन होगा कि मैं आई स्टार्ट स्टडीइंग इट राइट नाउ। Yes, and here I want to add, आप किताब पढ़िए, आप रिच डैड पुअर डैड, ये भी एक अच्छी बुक है, एंड ये ऑडियो में भी अवेलेबल है। एंड स्मार्टलेटिस इज लॉन्चिंग अ कोर्स, यू ऑलरेडी नो, टुडे इट वाज सपोज्ड टू बी launched. It's a basic share market course for students for 4 days by Mr. Manoj Jain. And so this is something good. You are having a like active mentor, or you can choose anyone. So this is good. और ये क्यों करना चाहिए, एक कारण और है. The main area a human being, a small human being, a big human being, all sizes, small, large, extra large, मतलब हम पे पैसे का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आप देखोगे, जैसी हमें समझ आती है, आने लगता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया विच वी डील. So why not, accept it and start working, taking baby steps. We are talking about baby steps. ये नहीं कि मम्मी पापा या आप खुद ही मम्मी पापा को छोड़ दो, आप खुद ही अपने आप को एनालाइज करो सेल्फ की कितना टाइम जा रहा है. बट फाइनेंशियल स्टडीज आर इम्पोर्टेंट. आप सीखोगे कैसे? ये तो स्विमिंग की तरह है. जब तक आप इस पैसे की दुनिया में जाओगे नहीं, आप इसको सीखोगे कैसे? और पैसा इज सो इजी. यू हैव टू सेव इट, you have to spend it, you have to invest it in your own self, in books or whatever, and you have to donate it. So देखो कितनी अच्छी ट्रिक से अभी हमने क्रिएट किया. So let's go ahead. I really appreciate this thing. One line for वरदान. वरदान ने सवाल जो पूछा है उसके लिए, वरदान मम्मी पापा से ये सवाल पूछिएगा कि आपको 10th में मेरे से कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है. मैं वो गारंटी करता हूँ इतने मार्क्स आ जाएंगे. पहली चीज, आप क्या चाहते हो मैं कितना घंटा पढ़ाई करूँ, आपके दिमाग में क्या है, कितना एक्सपेक्टेशन है. वो बोलेंगे 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा. बोलना उतना मैं पढ़ूंगा. उसके अलावा जो मेरे पास समय बचता है उसमें मैं 1 घंटा शेयर मार्केट कर लूँ, कोई मना नहीं करेगा. नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर रेडी अप्रोच. हम पेरेंट्स से उल्टा करते हैं, मुझे तो शेयर मार्केट करना है, तो थोड़ा झगड़ा हो जाता है. वो बोलते हैं मार्क्स नहीं आए तो, वो मार्क्स का कुछ फायदा नहीं होता है आगे जाके, इसका बहुत फायदा होगा. Don't go into that aggressive mode of crossing what their needs are, what their expectations are. Fulfill their expectations, their points, and say, in my additional time, I want to do this. Nobody will say no to you, Vardhan. Thank you, sir. Thank you so much. Over to you, Nahid ma'am. So my connection was lost. Anybody else wants to ask anything, or else we'll end the session. And Sumit ji, you are into financial training, and you took such a wonderful session, sparing your 1 hour here. And I think these students in turn as an energy exchange. I talk about energy exchange. अपने फ्रेंड्स को कंट्रीब्यूट करना है जो आज आपको मिला है, क्योंकि ये लड्डू पेड़े बटेंगे नहीं तो आपको मजा भी नहीं आएगा, और then you will not be excited for further. So all of you, thank you so much, and the people who have watched this particular important career counseling. So keep this journey on. This was just we had just done some initial discussions.
द रियल ग्राउंड वर्क, आइसबर्ग के नीचे वो जो काम होता है, या पेड़ के नीचे की जो रूटेड एक जो the basic work is required, that is still left, and you need to know more about it. So thank you so much everyone for being here, and thank you for people who are watching this. And Sumit ji, you were the best, and all of you, don't ask anybody feedback. I am telling you that you were the best here. Thank you so much. कुछ लोग कैमरे से पीछे थे, सिद्धार्थ, but next time I would love to see you on screen. Thank you. Thank Sir. you.